Yoga has such a feature that keeps our mind stable and teaches us the art of staying healthy in any ups and downs of life. Good evening, one and all present here, honorable guests and participants for the session. I, Shivangini, student teacher and NSS volunteer of Army Institute of Education, feels privileged to welcome you all on My Life, My Yoga 10 Days Online National Workshop organized by NSS Cell Guru Gobind Singh Indraprastha University in collaboration with Adhyatma Yoga Sansthan and NSS Cell Army Institute of Education, Greater Noida. I also welcome Professor B.V. Ramana Reddy, Program Coordinator, NSS Cell GGSIPU, New Delhi. Our co-patron, Dr. Tanya Gupta, Principal, Army Institute of Education, Greater Noida. Ms. Pratibha Garg, Program Officer, NSS Cell, Army Institute of Education, welcomes you all once again. The gift of learning to meditate is the greatest gift you can give yourself in this lifetime. Now, I introduce our today's resource person, Dr. Ramesh Kumar, for Preksha Meditation. And for the second session, we have Ms. Deepika, student teacher and NSS volunteer of AIE. Today, we celebrate International Literacy Day. She is here to tell us more about International Literacy Day. Now, I welcome you. Now, I welcome our resource person, Dr. Ramesh Kumar. Sir, Sir is a gold medalist in official sports tournament, Directorate of Education, Sports Branch, Government of NCT of Delhi, below 40 male 2018. Sir has also won All India Inter-University Yoga Tournament Open Gold 2003 and 9th Olympic Yoga Sports World Cup and in 7th International Artistic Yoga Sports Cup Open Gold 2000. Sir has also published 6 research papers, national and international, and published 5 books. Sir is presently working in as assistant professor in yoga department in Sri Lal Bahadur Shastri Sanskrit University, New Delhi. Now, I request Sir to aware us about the Preksha meditation. Over to you, sir. धन्यवाद। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे, 3 बार ओम का जाप करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहि। ॐ नमः शिवाय च नमः शंकराय च नमः शिवतराय च नमः मस्कराय च। ॐ ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ॐ विश्वानि देव सवितृदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ॐ rub your palms, put in the eyes,
Put your face, open your eyes, slowly. आदर एवं सम्मान के योग्य आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्रधानाचार्य जी डॉक्टर तानिया गुप्ता, प्रोग्राम को लीड करने वाली डॉक्टर प्रतिभा गर्ग और इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर बीबी रेड्डी सर और समस्त पूरी टीम और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा विषय प्रेक्षा ध्यान का है, लेकिन हम प्रेक्षा ध्यान से पहले दो चार छोटी छोटी बातें करेंगे। सबसे पहले हम ओम के जाप की बात करेंगे, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ ओम के उच्चारण को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत प्रकार से लोग उसको गलत वो करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो ओम का जो जाप है वो हम कैसे करें, हमारे लिए कैसे बेनिफिट दे सकता है, कैसे सकारात्मक भाव प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ, कई जगह जाता हूँ, तो कुछ लोगों को ओम के जाप से सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब भी वो ओम का जाप करते हैं उनके सर में दर्द हो जाता है। ये मेरे लिए एक बड़ा विचित्र मेरे सामने एक परिस्थिति आई। मैं एक बार हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गया हुआ था और एक स्कूल टीचर ने मुझे कहा कि सर मैं जब भी ओम का जाप करती हूँ तो मुझे सिर में दर्द हो जाता है। भगवान की प्रेरणा थी, मैंने तो कुछ सोचा नहीं था। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं करा के दिखाता हूँ आपको, आप कीजिए। और ध्यान को यहाँ नहीं लगाना, सहस्रार चक्कर पे लगाना है। तो कई बार क्या होता है, ईश्वर जब आपके साथ होता है तो बुद्धि अपने आप काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया और वैसा कुछ सोचा नहीं। अब पर्सन आ गया तो ईश्वर रखवाला है। तो मैंने कहा ध्यान आप यहाँ नहीं लगाना, आप ध्यान सहस्रार चक्कर पे लगाइए। और जैसे ही सहस्रार चक्कर पे लगाया उसको सर में दर्द नहीं हुआ और उसको बड़ा रिलीफ फील हुआ। तो कई बार हम ओम का जाप करते हुए अपने शारीरिक स्थिति को, अपनी मानसिक स्थिति को अलग प्रकार से बना लेते हैं, जिसके कारण से मंत्रों का सही लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं ओम की जाप की 2-4 मिनट आपसे चर्चा करूँगा, आपको कैसे करना है। हो सकता है कि आपको मेरा व्यू पसंद आए या मेरा जो तकनीक है वो आपको पसंद आए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैं आपको बताता हूँ वो मैं पुस्तक से नहीं बताता हूँ कभी भी, वो अनुभव से बताता हूँ। क्योंकि बहुत लंबे समय से योग का अभ्यास करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और प्रोफेसर रेड्डी सर 8-10 साल से मुझे जानते हैं और कई बार मेरे साथ योगा भी किया है उन्होंने, योग का अभ्यास भी किया है। तो वो अच्छे से जानते हैं इस बात के लिए। तो थोड़ी-सी इसमें हम करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में स्थित हो जाएँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पद्मासन लगाएँ, लेकिन पद्मासन लगाने पर एकाग्रता का भाव बढ़ जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि-मुनि देखना ऐसे बैठे पाएँगे, पद्मासन में या सिद्धासन में। तो पद्मासन लगाने से जो हमारे मस्तिष्क में जो एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो बढ़ जाती है। इसलिए पद्मासन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लेग्स ब्लॉक हो जाने के कारण से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। ये भी एक उसका पहलू है। तो हमें जब ओम का जाप करेंगे तो आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएँ, चाहे वो पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो या किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो चेयर पे बैठ जाएँ, मुड्ढे पे बैठ जाएँ, खाट पे बैठ जाएँ, फिर बेड पे बैठ जाएँ। मतलब ऐज़ ए लाइक आपके शारीरिक स्थिति आपको कहाँ अलाउड करती है। लेकिन जो मेरी तरह जो मुझे यंग बच्चे दिख रहे हैं बहुत सारे इसमें, तो वो 100% पद्मासन का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा लाभ चाहिए। जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको कम लाभ चाहिए। आपको बहुत लंबी अभी दौड़ लगानी, बहुत लंबा समय आगे चलना है, तो इसलिए आपको पद्मासन आना ही चाहिए।
लेकिन फिर भी यदि अभी शारीरिक स्थिति आपको अलाउ नहीं करती है, तो आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाइए। सबसे पहला तो यही है। उसके बाद ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो या इस प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ ना हो। आप घर में बैठिए, पूजा वाले कमरे में बैठिए, छत पे बैठिए, आप गार्डन में बैठिए, जहाँ भी आप बैठना चाहें, उसके लिए कोई वो नहीं। ध्यान रहे कि आपका मुख जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसे हमारे घेरेन संहिता में महर्षि घेरेन जी और हठयोग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठ के ही हमें प्राणायाम, हमें ध्यान और हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दिशा का जो है हमारे शरीर पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो पूर्व या उत्तर दिशा में हमारा फेस होना चाहिए। उसके बाद सीधा बैठने का प्रयत्न करें, क्योंकि योग में 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है और वो सारी की सारी नाड़ियाँ जो है सहस्रार चक्र से होते हुए हमारे जो बैक में स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर से गई हुई है सारी की सारी नाड़ियाँ और वो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई। उन 72,000 में 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एक दायाँ स्वर, बायाँ स्वर, एक मध्य स्वर जब दोनों चलती हैं, सुबह-शाम जो गोधूलि का टाइम होता है, ये मॉर्निंग और इवनिंग जब होती है और शाम को इवनिंग और नाइट जब मिलती है, उसको समय गोधूलि का समय बोलते हैं। तो उस समय अक्सर हमारे दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। अन्यथा हमारे दोनों स्वर दिन में बहुत रेयर केस में चलते हैं। कभी राइट चलता है, कभी लेफ्ट चलता है। तो सीधे बैठ जाएँगे, गर्दन कमर को सीधा रखेंगे। सीधा रखने का तात्पर्य ये है कि जो आप करना चाहते हो वो डायरेक्ट पूरी बॉडी में उसका लाभ आए। आप ऐसे करके बैठेंगे तो वो लाभ आपका यहीं तक रह जाएगा, आपके पूरे शरीर में नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि जब भी आप कोई काम करें तो उसका पूरा लाभ मिले। दूसरी बात, ऐसे बैठने से हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ऐसे बैठने से हमारे फेफड़े फैल जाते हैं। तो जब चीज़ फैली होगी, स्ट्रेट रहेगी, तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन की मात्रा आपके फेफड़ों में जाएगी और पेट सीधा रहेगा, तो पाचन क्रिया भी अच्छे से मजबूत सी से हो जाएगी, पाचन बढ़िया होगा और पेट को ऐसे सिकोड़ कर बैठेंगे तो अब वो पेट को मथने की जगह ही नहीं है, भोजन को आमाशय को मथने की जगह ही नहीं है, हाथों को ऑब्जर्व करने की जगह ही नहीं है, तो कैसे वो उसका शोषण करेंगे, कैसे वो खाने को पचाएँगे? तो इसलिए भी हमारे ऋषि मुनि हर बार जो है स्ट्रेट बैठने के लिए बोलते हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे बेड का सहारा लेके कमर को ऐसे पीछे दीवार के साथ लगा के और ऐसे बैठ जाते हैं, उनकी कमर में कर्व आ जाता है, वो मुड़ जाती है कमर और फिर वो उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारी बहनें ऐसे झुकती रहती हैं, ऐसे, ऐसे झुका के रखती हैं। वो फिर ऐसे ही रह जाता है, वो ऐसे नहीं होता। सीधा रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो उम, बैठने का जो पोस्चर है, चाहे वो हम पढ़ते हुए हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रहे हों, चाहे घर पे पढ़ रहे हों, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखें। स्ट्रेट होके पढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी। डाउन होके पढ़ना बैठने से आपकी कंसंट्रेशन भंग रहेगी। वो हो सकता है कि वो व्यक्ति विशेष के लिए नियम लागू ना होता हो। मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि आपने इतनी आदत डाल ली हो शरीर को कि आप टेढ़े बैठ के भी कंफर्टेबली पढ़ रहे हो, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने लंग्स के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर थोड़ा रहम करना चाहिए। तो जब हम सीधे बैठ जाएँगे, तो लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास लेने के बाद ओ के लिए हमें अपने मुँह के होठों को खोलना है। ओ, फिर ऊकार या इकार 2 ठहरी है हमारे यहाँ, उ, ए, उ, मैं, ओम। तो और आर्य समाज लिखता है ओ, ई और मैं। तो ये ओ, ई, मैं वाला बड़ा ओम है और एक जो अपना गोल जो चंद्र बिंदु वाला ओम बनाते हैं वो है। तो उसमें उकार, इकार और मकार। तो ओकार, इकार, मकार। तो ओ में मुँह को थोड़ा-सा खोलेंगे, ई में थोड़ा-सा बंद कर लेंगे और मैं में लंबा साउंड चलता रहेगा। मैं में वाइब्रेशन आनी चाहिए। ओम। और वो वाइब्रेशन आनी चाहिए, यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। अब बहुत सारे लोग बस बैठ के बोलते हैं, फ़ील नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि योग फ़ील करने की चीज़ है। योग दौड़ने की, भागने की, इधर-उधर कुछ झटका-पटकी करने की चीज़ नहीं है। ये योग है फ़ील करने की चीज़, अनुभव करने की चीज़। आप इसको फ़ील कीजिए, आपको 101% लाभ मिलेगा। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो योग से ठीक ना हो और योग करने से कोई बीमारी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या तो आप योग गलत कर रहे हैं?
या आपका योग करने का तरीका सही नहीं है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि मैं जो योग कर रहा हूँ, वो जो मेरी प्रॉब्लम है उसको उस पे सूटेबल ना हो। वो उस लेवल को फ़ील नहीं कर पा रही हो, या मैं जो कर रहा हूँ वो फ़ीलिंग के साथ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कान में लगा लिया म्यूज़िक और अब मैं रनिंग कर रहा हूँ, अब मैं योगा कर रहा हूँ, अब मैं ट्विस्टिंग कर रहा हूँ, टर्निंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप ट्विस्टिंग टर्निंग कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए योग ने कहा है, सब चीज़ों को शांत रखो, दूर रखो, स्वयं को जानने का प्रयत्न करो। स्वयं हर चीज़ का अनुभव लीजिए, स्वयं फ़ील कीजिए। हम क्या करते हैं, फ़ील नहीं करते हैं। एक छोटी बच्ची आ गई है हमें सुनने के लिए, देख लीजिए, पार्क में घूमते हुए। चलिए, योग तो ईश्वर की विद्या है, पशु-पक्षी सब कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, तो वो प्रेम जो है ना, वो स्वतः ही खींच के आ जाता है, वो लेके नहीं आता कोई भी। तो ये स्वतः ही आ गई कि पता नहीं अंकल क्या कर रहे होंगे, सर क्या कर रहे होंगे, तो वो खिंचाव आ गया, चलिए। तो योग फ़ील करने की चीज़ है, उसको अनुभव करना सीखिए। जब तक आप फ़ील नहीं करेंगे, आपको लाभ बहुत मिनिमम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लंबे साधक होते हैं जो लंबी-लंबी साधना करते हैं, योग सिद्ध नहीं होता है, आसन सिद्ध नहीं होते हैं, प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है, तो कहीं न कहीं कमी है। या तो आप वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो मान लीजिए मुझे 1 घंटा जो काम करना चाहिए, मैं वो आधे घंटे कर रहा हूँ, तो लाभ कम मिलेगा, स्वाभाविक है। या सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले मुँह को ओम, ओम, ओ, ई हल्का और मैं बड़ा, और मैं में वाइब्रेशन को फ़ील करना है और अपने ध्यान को उस वाइब्रेशन पे लगाना है। अब वाइब्रेशन कहाँ-कहाँ फ़ील हो सकती है? आपके लिप पे, आपकी नोज़ पे, आपके आज्ञा चक्र पे और आपके सहस्रार चक्र पे। यदि मुझ पे विश्वास नहीं हो तो अपना हाथ लगा के देख लीजिएगा। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली चीज़ है। आप यहाँ लगा के देख लीजिएगा, आप यहाँ लगा के देख लीजिएगा, आप यहाँ लगा के देख लीजिएगा, आप यहाँ लगा के देख लीजिएगा। यहाँ चोटी वाली जगह जो होती है बीच वाली, तो एक न एक जगह आपको ज़रूर सुनाई देगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको सुनाई दे, क्योंकि ये व्यक्तिगत, शरीरगत कार्य है। किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ भी सुनाई देती है और किसी को यहाँ सुनाई देती है। हम यदि उस वाइब्रेशन को ट्रैक कर लें, उस वाइब्रेशन के ऊपर अपने ध्यान को लगा लें, तो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनको अवसाद की प्रॉब्लम है, जिनको टेंशन की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा फालतू इधर-उधर दिमाग दौड़ता रहता है, सोचते रहते हैं 24 घंटा, और बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, माइग्रेन है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप ये सोच लीजिए 50% आप ठीक हो गए। लेकिन उसको फ़ील करना है और कम से कम भी आपको 25 से 30 बार ओम का जाप करना है, और ओम का जाप करने के बाद आप बैठेंगे नहीं, आँखें खोलेंगे नहीं खोलेंगे। कई लोग क्या करते हैं, काम खत्म, तुरंत आँखें खोली, इधर-उधर ताक-झाँक शुरू, नहीं। अब आप बैठ गए हैं, तो ओम के जाप के बाद अब हम जाप 3 प्रकार से हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु। हमने ओम ये वाचिक जाप है, उसके बाद उपांशु है, होंठ हिलेंगे, ब्रीथ इन भी करनी है, ब्रीथ आउट भी करनी है, लेकिन साउंड नहीं होगी। और फिर है मानसिक, केवल मन में चलता रहे। तीनों का अभ्यास करना है। पहले को आप लीजिए 5 टाइम, दूसरे को आप लीजिए 3 टाइम और तीसरे को आप लीजिए फिर 5 टाइम। मन में देखिए, फ़ील कीजिए और उस वाइब्रेशन को फ़ील करते रहें। जब तक वो वाइब्रेशन शांत नहीं होगी, तब तक आपको आँख नहीं खोलनी है और कोई व्यापार नहीं करना है। कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से, कोई-कोई व्यापार चलता रहता है। कभी मक्खी बैठ गई, कभी मच्छर बैठ गए, और मैं पार्क में बैठा हूँ तो स्वाभाविक है, प्रकृति की गोद में हो तो कुछ ना कुछ बैठेगा ही। लेकिन आपको व्यापार नहीं करना है, बिल्कुल अपने पास है। प्रत्याहार है ना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये तो प्रत्याहार है। ऐसा नहीं है कि योगियों के कान सुनते नहीं, सुनते हैं, लेकिन उनकी कंट्रोल है, उनको पता है ये मेरे योग्य नहीं है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अब हम 5 बार वाचिक, 2 बार उपांशु और 5 बार मानसिक जप एक ट्रायल बेसिस पर कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं चलिए।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है 5 बार में कोई लाभ ना मिले, तो वाचिक को हम 10 टाइम कर देते हैं, उपांशु को हम 5 टाइम करते हैं और मानसिक को भी हम 5 टाइम रख देते हैं। वाचिक का टाइम बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्थूल बुद्धि वालों के लिए जैसे मैं हूँ, वाचिक ज़्यादा लाभ करता है। जिनको डिप्रेशन, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, रोगी हैं, उनको वाचिक ज़्यादा लाभ करता है। उपांशु जो योग में थोड़े हस्त सिद्ध हो गए हैं उनके लिए है, और मानसिक तो जो योगी हैं, योगी बन चुके हैं उनके लिए है। तो हम सबसे ज़्यादा लाभ वाला करेंगे। तो 10 टाइम सीधे बैठेंगे नॉर्मल स्थिति में। शरीर को तानना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ये भी गलत है। इससे क्या है, वो वाला असर खत्म हो जाएगा, शरीर का पूरा ध्यान यहीं रह जाए ये ताने हुए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ तान के रखते हैं, भाई क्यों ताना हुआ है? कि सीधा कर बैठने के लिए बोला है, तो सीधा बैठने के लिए बोला, तानने के लिए थोड़ी बोला है। आप जो कंफर्टली पोस्चर है उसमें बैठिए ना। आप बहुत तानेंगे तो आपका ध्यान असली चीज़ से भटक जाएगा और यहाँ तने हुए पे रह जाएगा, हाथों पे ऐसे सीधे किए हुए, बिल्कुल एकदम तना हुआ। ऐसे अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐंठने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत स्वभाव से जितना कम्फर्ट फ़ील हो, आप उस हिसाब से बैठिए। आँखें बंद कीजिए। धीरे-धीरे अपने श्वास के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। देखिए, अनुभव कीजिए, फ़ील कीजिए, बस। अभी कुछ नहीं करना है। जैसे-जैसे निर्देश आएँगे वैसे-वैसे आप करेंगे। मैं ओम का जाप शुरू करने के बाद आपको कोई निर्देश नहीं दूँगा। 10 बार होने के बाद मैं शांत हो जाऊँगा, आप भी शांत हो जाएँगे, फिर आप 5 बार वाचिक जाप करेंगे, उसके बाद 5 टाइम्स आप मानसिक जाप करेंगे। उसके बाद जब तक फीलिंग रहेगी आप आँखें नहीं खोलेंगे, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। जब फीलिंग खत्म हो जाएँगी, तब मैं आपको आगे का निर्देश शुरू करूँगा। इसलिए तब तक आप ये काम करते रहें। सीधे बैठिए, आँखें बंद, शरीर को सौम्य अवस्था में ले आएँ, चेहरे को सौम्य अवस्था में ले आएँ। किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का स्ट्रेस आपके मन पे, आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। शांत भाव में हो जाइए, बिल्कुल ईज़ी, जितना ईज़ी होंगे उतना ही लाभ, बिल्कुल शांत, ना भाव में, ना प्रभाव में, जियो अपने स्वभाव में आ जाइए, बस, बिल्कुल अपने स्वभाव। श्वास पर ध्यान लगाएँ, ताकि अपनी श्वास की गति आपकी नॉर्मल हो जाए। धीरे-धीरे लंबा गहरा श्वास लें और ओम का जाप शुरू करेंगे। ओम।
धीरे धीरे अपने पाम्स को रब कीजिए. Rub your palms. Put in the eyes. Put your face. हाथों के अंदर ही अपने आईज को ओपन करेंगे. फिंगर्स में जो गैप है उसके गैप से अपनी आंखों से बाहर देखने का प्रयास करेंगे. धीरे धीरे हाथों को नीचे. यदि इसमें किसी भी साधक को कोई समस्या आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझसे अभी इसी के बारे में चर्चा कर सकता है, को क्वेश्चन कर सकता है. उसके बाद फिर हम आगे का जो है उसकी अभ्यास करेंगे. Sir, may I ask something? हाँ बोलिए मैम. सर कभी कभी जब हम इस साधना में बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत बहुत सारे विचार आने लगते हैं. तो मीन्स उस चीज को कैसे आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं. हालांकि आपने अपने पिछले सेशन में कहा था कि ये प्रैक्टिस से होगा, बट फिर भी समटाइम्स आई फील कि मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा आ जाते हैं थॉट्स. तो हाउ टू कंट्रोल देम? मैम विचारों को रोकने के लिए आप वाचिक जप ज्यादा करें, और जब वाचिक जप करेंगे
और जो वाइब्रेशन होगी आप उस पे ध्यान लगाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है। जब भी कोई साधना में बैठता है तो सभी की सामान्य प्रॉब्लम है, क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, चाहे वो घर के हों, परिवार के हों, ऑफिस को हों या अन्य सांसारिक हैं। तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं और वो चलते ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में, जब अर्जुन ये कहता है कि जी मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं हो रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है, भगता डोल डोल रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो मन को वश में करना इतना सरल नहीं है, लेकिन अनपॉसिबल भी नहीं, पॉसिबल है। अभ्यास और वैराग्य से ही पॉसिबल है। बार 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 प्रयत्न करेंगे। उसका यही है कि आप शब्दों पे ध्यान दे दें, जैसे ओम, ओम, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने आंखें खोली तो विचार तो बंद हो जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन अदर जो समस्याएं वो क्रिएट हो जाएंगी। तो आंखों को तो बंद रखना है, लेकिन शाब्दिक रूप से आप जाप को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब विचार आना, नींद आना, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये समस्या नहीं है, ये कारण है, ये होता ही है, ऐसा सभी के साथ होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने वाचिक जो जप है उसमें थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो ये चला जाएगा, या अपने ध्यान को वाइब्रेशन पे लेके आएंगे तो भी चला जाएगा। लेकिन इतना सहज भाव में ये जाने वाला नहीं है, समय लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं बहुत सारे ऐसे योगियों को, लोगों को जानता हूँ जो घर बार छोड़ के संन्यास की अवस्था में हैं। लेकिन जब हम उनसे इस बात की चर्चा करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि आप ये मत सोचिएगा कि हमारे मन में विचार नहीं आते, विचार आते हैं, लेकिन हम बार बार उन विचारों को कम करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो पहले बहुत वेग से विचार आ रहे थे या बहुत ज्यादा विचार आ रहे थे, अब वो बहुत मिनिमम रह गए हैं। लेकिन मिनिमम रहने का भी ये है कि अब जब साधना में 2-3 घंटे बैठते हैं तो कोई विचार आ जाता है, एक आधा विचार आता है। आप और हमारे साथ समस्या ये है कि जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही ब्रेन शांत होता है, विचार अपना काम शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा विचार आते हैं, उन लोगों को, योगियों को कम विचार आते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है, कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और कोई कुछ पूछना चाहता है या फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करें? चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम एक भस्त्रिका का प्राणायाम करेंगे, और श्री श्री रविशंकर जी इसको सुदर्शन क्रिया के रूप में भी करवाते हैं। उनके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो हम अभी बिना स्टेप वाला काम करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्टेप वाला करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है, लंबा गहरा श्वास। इसको सभी लोग कर सकते हैं। बस 10 टाइम्स जो है हमें लंबा गहरा श्वास लेना है। उसके बाद आगे की जो स्टेप्स होंगे उसका निर्देश आपको मिलेगा। बस लंबा गहरा श्वास लेंगे, नोस्ट्रल से लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। 10 टाइम्स ओनली लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। और जब 10 टाइम हो जाए, आंखें बंद करें, शांत होकर बैठ जाए। धीरे धीरे फिर पाम्स को रब करें, फिर आइज पे रखें और आंखें। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि आंखें क्यों बंद करनी है और क्यों रब, पाम्स को रब करना है। क्योंकि हम जब भी आंखें बंद करते हैं हमारी आइस जो है बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, और जैसे आंखें खुलती है वो बाह्य टेम्परेचर पर आ जाती हैं। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने पाम्स को इतना रब करें कि उष्णता पैदा हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए, हीट पैदा हो जाए, और फिर अपने आइज और अपने फेस को लगाएं और फिर हाथों के बीच में ही अपने आइज को ओपन करें।
अब ये जो भस्त्रिका था ये सभी सामान्य अवस्था में कर सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा स्पीडली करेंगे, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको चक्कर आ जाते हैं थोड़ी-सी श्वास पर श्वास में, जिनको घबराहट होती है, वो पहले वाला स्टेप करें जो हमने कर चुके हैं। और ये वाला स्टेप जो है वो जिनको कोई इस प्रकार की समस्या नहीं, हाई बीपी की समस्या नहीं, घबराहट की समस्या नहीं, तो वो करें। या फिर यदि घबराहट वाले करना चाहते हैं तो जब घबराहट शुरू हो तो वो छोड़ दें बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम 30 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, थोड़ा-सा स्पीडली करेंगे। एक बार देख लीजिए। ये आपके ब्रेन संबंधी समस्याओं के लिए, जिस पर कपालभाति से कपाल का शोधन हो जाता है, इसी प्रकार से इस भस्त्रिका से भी आपके कपाल का शोधन हो जाएगा। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी फालतू की जो टेंशन है, फालतू के जो विचार चलते रहते हैं, अभी जो मैडम कह रही थी कि विचार चलते रहते हैं, तो वो विचार भी समाप्त हो जाएँगे। उसके बावजूद जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, अक्सर किन्हीं को आधे सर में दर्द रहता है, किसी को नाक में प्रॉब्लम रहती है, नाक की एलर्जी रहती है, धूल-मिट्टी होती है, तुरंत छींक शुरू हो जाती है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, छींक शुरू हो जाती हैं। तो इन इन संबंधी जो प्रॉब्लम है, गले से ऊपर की जो समस्याएँ हैं, साइनस की प्रॉब्लम है या अन्य किसी प्रॉब्लम है, मांस बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई नाक में, तो ऐसी जो समस्याएँ हैं, उनको ये दूर करेगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको बीच में छोड़ सकते हैं। तो 30 बार लंबा गहरा साँस थोड़ा स्पीड ले लेंगे। जो यंग लोग हैं वो और अच्छे से करें और जो सीनियर सिटीज़न है वो थोड़ा-सा धीरे अभ्यास करें। और जो बीमार व्यक्ति हैं जिनको इस प्रकार की समस्या है, हार्ट संबंधी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या है, वो इसे धीरे करें। लेकिन जिनका हार्ट कमज़ोर है वो ज़्यादा अच्छे से करें ताकि हार्ट मजबूत हो जाए और हार्ट की पंपिंग भी बढ़िया हो जाए और वो 100 साल तक आपका हार्ट जो है अच्छे से काम करे। किसी प्रकार की कोई हार्ट में समस्या ना आए। चलिए आँखें बंद करेंगे, शुरू करेंगे। अभ्यास करते रहें, आँखें बंद रखें, फ़ील करें अपने माउथ को, अपने आइज़, अपने नोज़, अपने लिप्स, चीक्स, अपने चिन्स, अपने ईयर, अपने ब्रेन, फ़ोरहेड एंड पूरे अपने मस्तिष्क को, पूरे सिर को फ़ील करें। जिनके नहीं हुए हैं वो करते रहें, जिनके हो गए हैं वो शांत हो जाएँ। आँखें बंद रखें, अपने फेस को फ़ील करें, अपने मस्तिष्क को फ़ील करें, अपने ईयर, नोज़, अपने लिप्स, अपने नेक, अपने पूरी बॉडी को फ़ील करें। जहाँ पे फीलिंग्स हो रही है वहाँ अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें और अपने आप को स्थिर करें। होने वाले परिवर्तनों को फ़ील करते रहें, अनुभव करते रहें। उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाइए, बस उन्हीं में खो जाइए। क्या हो रहा है उसको अनुभव कीजिए, देखिए मन के। जब तक देखेंगे नहीं, जब तक फ़ील नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। उसको आँखें बंद रखते हुए देखिए, देखिए, मस्तिष्क में, चेहरे पर, गर्दन में, पीठ पर, सांस में, पेट पर, जहाँ फीलिंग होती है वहीं ध्यान को एकाग्र कर दीजिए। पूरी बॉडी पे ध्यान नहीं ले जाना। जहाँ भी जिस स्थान पे आपको फीलिंग हो रही है, उसको अनुभव कीजिए, देखिए।
धीरे धीरे यदि फीलिंग समाप्त हो गई हैं तो अपने पाम्स को रब करें एक बार फिर अच्छे से रगड़ें पाम्स को, और एनर्जी क्रिएट होने पर अपने चेहरे पर लगाएं, अपने आइज को धीरे धीरे बंद करें। और यदि ये फीलिंग्स आ रही है तो बनाए रखें अपनी फीलिंग्स पे, अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए, बने रहिए। मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगा, यदि उनको बुरा ना लगे तो वो मुझे स्पीकर ऑन करके बताएं कि आपको क्या फील हुआ। जी सर। सर मैं एक तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और बॉडी में वाइब्रेशंस भी फील हो रही हैं काफी ज्यादा। जैसे अभी अब 30 बार इतना शायद प्रैक्टिस ही नहीं है लंबा सांस खींचने की, तो 20 के बाद थोड़ी हालत खराब होनी भी शुरू हुई थी। और जो लास्ट के 10 जो किए उसमें शरीर में गर्माई भी फील हुई काफी ज्यादा। और एक चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा होती है, मेरा अपना एक पर्सनल अनुभव है कि जब जितनी भी देर इसको करना शुरू करते हैं तो आईज के सामने जब बंद होती हैं तो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और फेंट बहुत हल्का हल्का सा कुछ ऐसा फील होता है जैसे कोई एक सोर्स है जहां से ये क्रिएट हो रहा है, और नींद सी आनी शुरू होती है। तो 20 के बाद थोड़ा सांस दिक्कत हुई, मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो ऐसे में क्या हम बीच में इसे हल्का भी कर सकते हैं? अगर 20 करते हुए लगे कि थकान सी महसूस हो रही है तो क्या इसको हल्का कर सकते हैं या कंटिन्यू करना चाहिए? आप छोड़ सकते हैं लेकिन हल्का नहीं कर सकते हैं। हल्का करने से क्या होगा, वो जो फील आपने हुआ है अभी, जो आपको वाइब्रेशन हुई है, आपको कुछ लाइट फील हुई है, आपको कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 श्वास में खत्म कर दीजिए उसको। तो तुरंत खत्म, 3 श्वास में खत्म करने के बाद फील कीजिए, और आपको जो फीलिंग हुई है बहुत अच्छी फीलिंग है, और ये योग में आगे बढ़ने वाली फीलिंग है। बहुत अच्छा लगा आपको फीलिंग हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है और खुशी है। अ, दूसरे यदि कोई साधक अपने आप की बातें शेयर करना चाहता है तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रतिभा अगर मैम काफ़ी कोऑर्डिनेट करती हैं, तो यदि आपने अभ्यास किया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी सर, मैं अनुरोध करूंगी कि कोई और साधक अगर इस चीज को शेयर करें। मिस शशि गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वो चाहें तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। यदि अभी फीलिंग नहीं हुई है तो हम एक राउंड और कराएंगे, आप चिंता ना कीजिए। हम सभी को फील कराएंगे निश्चित। बिल्कुल सर। डॉक्टर रमेश जी, कोई बोल नहीं रहा तो आप एक राउंड और करवा दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, एक राउंड और करेंगे। मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। योग में आनंद तभी आता है जब आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करते हैं। वो, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से डर के आगे जीत है, तो वो जो थम्स अप है या ड्यू है मुझे नहीं पता है, उससे डर के आगे जीत है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे योग का पता है कि एक चरम सीमा को क्रॉस करने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। क्योंकि हमारा शरीर एक लिमिट तक थकता है, उसके बाद थकान खत्म हो जाती है। आप, मैंने बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर और अपने दोस्तों पे, कि आप दौड़ना शुरू कीजिए, आप दौड़ेंगे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के बाद थकान शुरू हो जाएगी। आप थकान को शुरू होने दीजिए, छोड़िए मत। बस दृढ़ संकल्प, नहीं आज मुझे 10 मिनट दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। कल चाहे आप पड़ जाओ बेड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप संकल्प लीजिए। आप दौड़ेंगे 10 मिनट के बाद, या 10 सेकंड जो आपने टारगेट लिया है, उसके बाद आपके शरीर से उस समय थकान नहीं होगी, खत्म हो जाएगी थकान। ये आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देखिए। एक बार थकान होगी और चरम सीमा तक होगी। जब वो चरम सीमा क्रॉस हो जाएगी तो दर्द, दुख सब खत्म हो जाएंगे, और फिर आनंद की अनुभूति आएगी हर काम में। कोई भी काम कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आसन में खींच के कीजिए बॉडी को, खूब तोड़िए शरीर को। लेकिन जब एक चरम के बाद खिंचाव आएगा,
और वो चरम सीमा क्रॉस हो जाएगी दर्द की, उसके बाद आपको थकान नाम की चीज नहीं रहेगी। बिल्कुल, पीटी उषा को देखिए, इतने लंबी लंबी दौड़, आज भी लोग इतने लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं। तो उसके बाद आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता और थकान खत्म हो जाती है, वो चरम सीमा क्रॉस कर जाते हैं। शरीर के दर्द की कैपेसिटी है, उसके बाद दर्द नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में और भी होती हैं। यदि हम स्वस्थ हैं, फिट हैं, तब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे साथ और सारी समस्याएं हैं, तो इसे ट्राई ना करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। इस बार हम जो है 40 बार करेंगे। लेकिन जो साधक नहीं कर सकते हैं, 10 के बाद, 20 के बाद, 30 के बाद, जो जहां रुकना चाहता है रुकिए, लेकिन प्रयास करना है ज्यादा का। प्रयास कीजिए ज्यादा हो, लेकिन फिर भी यदि आप रुकना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप रुक जाएं। क्योंकि ये योग है, सहज पके सो मीठा, सहज स्नेह 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 कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लागना। स्नेह स्नेह करना, सारा काम धीरे धीरे करना है। स्नेह विद्या, धीरे धीरे विद्या को अर्जन करते हैं। पहली क्लास से शुरू होके इतने लंबे पीएचडी तक जाते हैं, तो धीरे धीरे कवर किया है। ऐसे योग में धीरे धीरे बढ़ना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग 10, 20, 30, 40 जितना करना चाहते हैं कीजिए। हम आपको 50 का टाइम देते हैं और उसी प्रकार से स्पीड भी बढ़ाएंगे। हम 20 तक जो पहला सेकंड राउंड किया उस पर रखेंगे। 20 के बाद थोड़ा और फास्ट करेंगे, 30 के बाद और फास्ट करेंगे, 40 के बाद और फास्ट करेंगे और 50 में देख लीजिए कैसे करेंगे। एक बार आप मान लीजिए ये मेरा 18वां है। ब्रीदिंग को एकदम फास्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना हाई बीपी वाले इसको ना करें। ध्यान रखना, सांस की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो इतना फास्ट ना करें। वो फर्स्ट स्टेप करें ओनली, और 2 की तैयारी करें। लेकिन जो यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 50 वाला राउंड करेंगे। फर्स्ट 20 जो सेकंड राउंड है, 20 के बाद 10 या 20 थोड़ा सा करेंगे, और लास्ट के 10। और फिर छोड़ते समय क्या करना है, तीन श्वास लेने, बस 3 डीप ब्रीदिंग। पहले वाला बहुत लंबा शांत, दूसरे वाला कम लंबा शांत, तीसरे वाला थोड़ा लंबा और शांत, और फिर फील करना है अपने आप। चलिए शुरू करते हैं। अब 1 से शुरू कर रहे हैं। चलिए
जिनको फील हो रहा है वो अपने फीलिंग्स को ध्यान दीजिए, जिनको फील नहीं हो रहा है वो अपने पाम्स को रब करेंगे, आइज पर रखेंगे और आइज खोल देंगे। धीरे धीरे अपने पाम्स को रब कीजिए, अपने आइज पे रखें और अपनी आइज धीरे धीरे खोल दीजिए। स्वागत है। जो भी अपने शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकता है, वो मैसेज के थ्रू भी शेयर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, आप अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं। सर बहुत अच्छा है, बहुत ही ऐसा लगा कि धन्यवाद। बिल्कुल हल्के हो रहे हैं हम, ऊपर उठ रहे हैं हल्के, और हाथों में ऐसे फील हुआ कि कहीं से एनर्जी आ रही है हाथों में और कुछ फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा सेशन कराया। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। मुझे लगता है कि एक बार और कराना चाहिए, क्योंकि मुझे फीडबैक कम मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोग मेरे साथ ही शांत हो जाते हैं। इस बार हम थोड़ा सा इसमें चेंज लेके आएंगे। इस बार मैं काउंटिंग करूंगा और आप करेंगे, ताकि आप प्रॉपर कर पाए, क्योंकि आप मुझे लगता है कम कर रहे हैं और मेरे साथ रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन हम इस बार काउंटिंग में क्या करेंगे, सो हम का जाप करेंगे। तो सो मतलब इनहेल, हम मतलब एक्सहेल। सो हम, सो में इनहेल, हम में एक्सहेल। और सो हम मेरे बोलने के उच्चारण के साथ आपको ब्रीदिंग करनी, जैसे सो हम, सो हम, सो हम, फिर सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, देना छोड़ना, फिर सो हम, सो हम, सो हम, सो। तो जो जैसे मैं आपको आवाज दूंगा आप उसी प्रकार से करें, चिंता ना कीजिए, 50 से ज्यादा नहीं करें। उसके बावजूद आप सीधे लेट जाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा मैं आपको रिलैक्स कर दूंगा, तब आप अपने आसन पे लेट जाएंगे, सब आसन बिल्कुल आराम से, पैर सीधे, घुटने सीधे, कमर सीधी, बिल्कुल जैसे सोते हैं, पीठ के बल आराम से सीधे लेट जाएंगे और होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करेंगे। आपको समय दिया जाएगा अपने परिवर्तनों को अनुभव करने का, तो अपने परिवर्तनों को आप अनुभव करेंगे, लेट करके अनुभव करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रेक्षा ध्यान का टॉपिक था वो शुरू होगा, यदि मैडम इजाजत देंगी तो, क्योंकि इस समय मुझे लग रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा है। आप इतना प्रेम देते हैं कि मुझे समय का पता ही नहीं चलता, मैम का इतना आशीर्वाद। आप जरूर बताएं सर प्रेक्षा मेडिटेशन। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। आप लोगों का, रेड्डी सर का, आपका इतना प्रेम होता है मेरे लिए कि मुझे समय का पता ही नहीं चलता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी साधकों से कि मैं आपके समय का ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो चलिए अब बिना बातें की इसको शुरू करते हैं। आप मेरी आवाज के साथ ऊपर नीचे चलेंगे और मेरी आवाज के साथ इसका आप जाप करेंगे। आंखें बंद कीजिए, कमर गर्दन को सीधा रखिए। सो हम, 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 सो
सो हम 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 शांत लेट जाइए अपने अपने आसन पे लेट जाइए होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कीजिए परिवर्तनों को अनुभव करते रहें और उनको याद रखें मैसेज बॉक्स में अपने परिवर्तनों को लिख करके आपको मुझे भेजना है इसलिए अपने परिवर्तनों को अनुभव करते रहें अनुभव करते धीरे धीरे अपने परिवर्तनों को अनुभव करते रहें जिनके परिवर्तन खत्म हो गए हैं वो आंखें बंद करके इसी प्रकार से लेटे रहें कुछ समय के बाद हम आपको परीक्षा ध्यान कराएंगे परीक्षा ध्यान करने के 3 तरीके होते हैं सबसे सरल तरीका है लेट कर करना मध्यम तरीका है बैठ कर करना और उत्तम तरीका है खड़े होकर करना लेकिन मैं आप लोगों से प्रथम और द्वितीय तरीके का अनुरोध करूंगा जो बैठे हुए हैं वो बैठ के कर सकते हैं जो लेटे हुए हैं वो लेट के कर सकते हैं या जो लेटना चाहते हैं वो भी लेट के कर सकते हैं आपकी अपनी इच्छा पर है धीरे धीरे अपने परिवर्तनों को फील करते रहें अनुभव करते रहें क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसका अनुभव करते धीरे धीरे हम प्रेक्षा ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं शरीर को ढीला छोड़ दीजिए परीक्षा शब्द का अर्थ है परीक्षा स्वयं को देखना स्वयं को जानना स्वयं का निरीक्षण करना और ध्यान का मतलब है एकाग्रता के साथ अपने आप को देखना परीक्षा ध्यान तो अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए किसी प्रकार से किसी प्रकार की
कोई शरीर में अकड़न, जकड़न, तनाव, दर्द, खिंचाव ना रहे। बिल्कुल शरीर को स्थिर कर दीजिए, निढाल कर दीजिए। आप आगे झुकना चाहते हैं, झुक सकते हैं। पीछे झुकना चाहते हैं, झुक सकते हैं। लेटना चाहते हैं, लेट सकते हैं। बैठना चाहते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन शरीर में तनाव ना हो। जिस सुखद आसन में शरीर कुछ समय के लिए स्थिर रह सकता है, उस सुखद आसन में अपने शरीर को ले आए। यदि आप चेयर पर बैठे हैं और आपको फोरहेड को नीचे करने का मन है, तो अपने हाथों पे अपने हेड को टिका दीजिए या इस प्रकार से टिका दीजिए। कोई तनाव आपके शरीर में ना हो, कोई खिंचाव आपके शरीर में ना हो। एकदम शरीर को शांत कर। शरीर की अकड़न, जकड़न और ममत्व से शरीर को मुक्त कर दीजिए। शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, शांत, शांत, शांत। धीरे धीरे अपने ध्यान को, अपने मन को अपने राइट पैर के अंगूठे पर लेके जाएंगे। अपने राइट पैर के अंगूठे को अपनी मन की आंखों से देखेंगे। अपनी फिंगर्स को, अपने तलवे को, अपनी एड़ी को, अपने टखने को, इन सभी को अपने मन की आंखों के द्वारा देखिए और स्थिरता का निर्देश दीजिए और अनुभव कीजिए। मेरा राइट पैर का अंगूठा, फिंगर, फिट, हिल, अंकल जॉइंट रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और धीरे धीरे अनुभव करें कि मेरे राइट पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स हो। धीरे धीरे ध्यान को अपने पिंडली पर, कफ मसल्स पर, नी पर, घुटने पर, थाई अपनी जंघा पर, हिप जॉइंट, कुल्ले के जॉइंट पर केंद्रित कीजिए। उसका निरीक्षण कीजिए और उसको स्थिरता का निर्देश दीजिए और अनुभव कीजिए कि मेरी पिंडली, मेरा नी, मेरी थाइस, मेरा हिप जॉइंट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और अनुभव कीजिए कि मेरा पूरा राइट पैर रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। मेरा थंब, मेरी फिंगर, मेरा फीट, मेरी हील, मेरा एंकल जॉइंट, मेरी काफ मसल्स, मेरा नी, मेरा थाइज, मेरा हिप जॉइंट, पूरा का पूरा राइट पैर शांत हो गया है, रिलैक्स। धीरे धीरे अपने ध्यान को लेफ्ट लेग के थंब पर केंद्रित कीजिए। फिंगर, फीट, हिल, अंकल जॉइंट और रिलैक्स होने का निर्देश दीजिए। अनुभव कीजिए कि मेरे लेफ्ट लेग का, बाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवा,
रखना, एडी शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और अनुभव करें, शांत हो गए। मेरा अंगूठा, उंगलियां, तलवार, एड़ी, टखना सब शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी पिंडली, नी, थाइस, हिप्स पर केंद्रित कीजिए और इन सभी को स्थिरता का निर्देश दीजिए। अनुभव कीजिए, मेरी पिंडली, मेरा नी, मेरी थाइस, मेरे हिप्स शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अनुभव कीजिए, मेरा लेफ्ट लेग की पिंडली, नी जॉइंट, थाइस, हिप जॉइंट सब रिलैक्स हो गए, शांत हो गए, शांत हो गए। अब किसी प्रकार की मेरे दोनों पैरों में अकड़न जकड़न तनाव आदि नहीं है, दोनों शांत हो गए। किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई खिंचाव अब मेरे पैरों में नहीं, शांत हो, रिलैक्स हो गए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी नाभि पर केंद्रित और नाभि प्रदेश को शांत करने का निर्देश और अनुभव करें, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरी पैनक्रियाज, मेरी आंतें, बड़ी आंतें, छोटी आंतें, मेरी मूत्र आदि इंद्रियां सब शांत हो, रिलैक्स हो रही है। किसी प्रकार का कोई तनाव मेरे शरीर में नहीं है। मेरे नाभि और नाभि प्रदेश शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और अनुभव करें, शांत हो गया है। मेरी नाभि, मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरी पैनक्रियाज, मेरी बड़ी आंतें, छोटी आंतें, जितने भी सिस्टम है सभी शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, शांत हो गए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेस्ट के ऊपर केंद्रित करें और अनुभव करें, मेरी चेस्ट, मेरे लंग्स, मेरा हार्ट शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और अनुभव करें, मेरे लंग्स, मेरा हार्ट
शांत हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक पर केंद्रित। जमीन पर लेते हैं तो जमीन के स्पर्श का अनुभव करें। चेयर पर बैठे हैं, चेयर के स्पर्श का अनुभव करें। और खड़े हैं तो केवल अपनी बैक, लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक को फील करें और अनुभव करें कि मेरी बैक शांत हो रही है, स्थिर हो रही है, रिलैक्स हो रही है। मेरी लोअर बैक, मेरी मिडल बैक, मेरी अपर बैक शांत हो रही है। और अनुभव कीजिए कि मेरी पूरी बैक शांत हो चुकी है, शांत हो चुकी है, शांत हो चुकी है। धीरे धीरे अपने ध्यान को गर्दन के ऊपर केंद्रित करें। अपने नेक को देखें, दाएं से, बाएं से, राइट, फ्रंट, बैक, आगे और पीछे से, चारों तरफ से अपनी गर्दन को देखें और स्थिरता का निर्देश दें, शांत करने का निर्देश दें। शांत हो मेरी गर्दन, शांत हो। गर्दन में जो खिंचाव था, जो तनाव था, जो दर्द था, वो सारा का सारा शांत हो गया है, शांत हो गया, रिलैक्स
और अपने मस्तिष्क पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और अनुभव करें कि मेरा मस्तिष्क शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अपने मस्तिष्क पर अपने ध्यान को एकाग्र करें, पूरे मस्तिष्क को देखें, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, सहस्रार चक्र, पूरे मस्तिष्क को अनुभव करें और स्थिरता का निर्देश दें और अनुभव करें मेरा पूरा मस्तिष्क शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। इसी प्रकार एडी से चोटी तक और चोटी से एडी तक पूरे शरीर का अवलोकन करें और स्थिरता का निर्देश और अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर स्थिर, शांत हो गया है। अब मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव, कोई अकड़न, कोई जकड़न अब नहीं है। मेरा शरीर शांत, स्थिर, स्थिर और रुई की तरह हल्का हो गया है, एकदम हल्का, बिल्कुल लाइट। अब मेरा शरीर एकदम रुई की तरह हल्का हो गया है। कोई दर्द, कोई शोक, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई भारीपन, कोई आलस्य अब मेरे शरीर में नहीं। मेरा शरीर शांत, स्थिर, स्थिर, हल्का, एनर्जेटिव, पॉजिटिव, सारे थॉट मेरे अंदर आ गए। मैं शांत हो गया, स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। अनुभव कीजिए अपने आप को। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और श्वास पर श्वास की गति को अनुभव करें। जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे रहें, जो लोग लेटे हुए हैं वो धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएं और आंखों को बंद रखें। धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएं और आंखों को बंद रखें। 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का जाप करेंगे। हाथ जोड़िए। उस परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्ति सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य और पवित्र जो इस सृष्टि का पालन करने वाला है, पोषण करने वाला है, संहार करने वाला है, ऐसे परमपिता परमात्मा उस ईश्वर ओम का धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें ध्यान करने का अवसर प्रदान किया, स्वयं को जानने का एक अवसर प्रदान किया। इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे समय में
मुझे ध्यान करने के लिए प्रेरित किया और ध्यान करने की क्षमता मुझे दी। हे परमपिता परमात्मा, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगे भी आप मुझे अपने समीप बुलाने के लिए, समीप रखने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास कराएं, इस प्रकार की मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद कीजिए सभी आयोजकों का, जिन्होंने ये अच्छा अवसर आपको उपलब्ध कराया। सभी के लिए एक मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने धीरे धीरे अपने पाम्स को रब कीजिए, अच्छे से घर्षण कीजिए हाथों में। जब एनर्जी आ जाए, उष्णता आ जाए, तब अपने आईज पे, अपने फेस पे लगाएं, अपने आईज पे लगाएं, अपने फेस पर लगाएं। धीरे धीरे अपने आईज को, अपने आँखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और फिंगर्स में जो गैप है उससे बाहर देखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे हाथों को हटा लें, इसको। यदि आप लोगों में से किसी की कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो आपका स्वागत है। Thank you, sir. It is a really illuminating session for all of us. Now the session is open for the queries. And the first question is, what should be the ratio of O and M while Ucharan of Om? ऐसा शास्त्रों में कोई निर्धारित नहीं है। प्राणायाम के लिए तो लेना, रोकना और छोड़ने का निर्धारण किया गया है, लेकिन ओम के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि तस्य है वाचक प्रणवय तद जब तदर्थ भावना। वो रेशो तो नहीं कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आप तस्य वाचक प्रणवय, उस प्रणव ओम का जाप करेंगे, तब उस अर्थ की भावना का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैं ओम कर रहा हूँ, तो यदि हम तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम सर्वेश्वर हो, तुम सर्वव्यापक हो, तुम संतर्यामी हो, तुम अजर हो, तुम अजर अमर हो, अभय हो, नित्य हो, पवित्र हो, इस प्रकार यदि ईश्वर के गुणगान करते हैं, उसके अर्थ की भावना करते हैं, क्योंकि ओम का अर्थ तो ईश्वर है और उसके ये सारे अर्थ हैं, उसके सारे उपनाम हैं, ये उसके कार्य हैं, उसके अर्थ हैं। तो उसकी यदि करते हैं तो उससे सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। रही बात अब व्यवहारिक पक्ष की, तो व्यवहारिक पक्ष में ओ को आपको मान लीजिए 3 टाइम्स बोलना है। मान लीजिए ओम ओम ओम, ये 3 टाइम आपने बोला, तो ओ इतना ओ कर लीजिए। ई को 2 टाइम या 1 टाइम, ये 2 टाइम हो गया, तो इसमें ओ फिर मैं को आप जितना लंबा ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। ये मेरा विचार है, शास्त्रों का विचार नहीं है। हो सकता है आपके पास मुझसे अच्छा ज्ञान हो, तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो इस हिसाब से ओ को छोटा थोड़ा सा, ई को और छोटा, और मैं को खूब लंबा, क्योंकि ओम का जाप भी हम व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारण कर सकते हैं। किसको किस प्रकार की समस्या है, किसी को गले की समस्या है, किसी को शब्दों के प्रोनाउंसिएशन की समस्या है, किसी को सर की समस्या है, तो उस प्रकार से हम इसका डिजाइन करते रहते हैं।
लेकिन सामान्य प्रोटोकॉल में हम ओ, ई और मैं पूरा लंबा उच्चारण कराते हैं। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंद्र भेदन प्राणायाम और अनुलोम विलोम? देखिए, पहले आप अनुलोम विलोम को जान लीजिए। फर्स्ट टू फिंगर फोल्ड कीजिए, लास्ट टू फिंगर एंड थंब आपका ये मुद्रा। आप ऐसे रखेंगे तो हाथ लंस से चिपका रहेगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगी। ऐसे करेंगे तो खिंचाव रहेगा, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाएगी। अब हम अनुलोम विलोम में क्या कर रहे हैं, हमने राइट नोस्ट्रल से बंद किया हुआ है, लेफ्ट से सांस ले रहे हैं। राइट हमारा ये है, लेफ्ट ये, लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा, और राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा। मुझे लगता है ये कर्म जो मैंने किया वो ठीक होगा, और जिसने क्वेश्चन पूछा शायद वो इसको सुन ले कि शायद मैं जो करके दिखा रहा हूँ वो ठीक होगा। ये अनुलोम विलोम का कर्म। अनुलोम विलोम का मतलब ये है उल्टा पुल्टा। अब है चंद्रभेदी की बात। राइट नोस्ट्रल को हम सूर्य स्वर कहते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल को हम चंद्र स्वर कहते हैं। राइट नोस्ट्रल हमारे भोजन को पचाने में, शरीर में उष्णता पैदा करने में, बॉडी में हीट जनरेट करने में काम आता है। लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में, हाई बीपी को लो करने में, शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करने में। यदि शरीर के अंदर हीट क्रिएट हो गई है तो लेफ्ट नोस्ट्रल अपना आप चल पड़ेगा। बहुत गर्मी है, 50-45 डिग्री टेम्परेचर है बॉडी को, तो वो लेफ्ट अपना आप चल गए और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे होगा, हमने उसी प्रकार से मुद्रा बनानी है। या मुद्रा का झंझट आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सारी फिंगर्स को फोल्ड कर लीजिए, आप थंब से लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से जो चंद्रभेदी है, जो चंद्रमा का द्योतक है, चंद्रमा के नाम से जाना चाहता है, जो चंद्र स्वर है, उससे 5 सेकेंड रोकें। जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को सीधा रखेंगे, और जिनको कोई समस्या नहीं है वो चिन लोग लगाएंगे, जिनको हम जलंधर बंद बोलते हैं। और फिर इसी हाथ का प्रयोग रहेगा, लेफ्ट बंद हो जाएगा और राइट से आउट करेंगे। आउट करने के बाद अब राइट को फिर बंद कर देंगे और लेफ्ट को फिर खोलेंगे। तात्पर्य ये है कि हर बार श्वास लेफ्ट से ही अंदर आएगा और राइट से छूटेगा। अनुलोम विलोम में हम ऐसा नहीं करते, हम एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर से लेते हैं। लेकिन चंद्रभेदी में चंद्रमा से ही लेना है और सूर्य से छोड़ना है। चंद्रमा से लेना है, सूर्य से छोड़ना है। बार बार चंद्रमा से लेंगे और सूर्य से छोड़ेंगे। थैंक यू सर। सर एक सवाल एकता चौधरी का है कि उनकी माता जी का जब ऐसे वो ब्रीथ करती हैं तो उनको सर में पीछे पेन होता है, तो उनको माता जी का पोस्चर गलत हो सकता है। माता जी को कोई वैसी शारीरिक समस्या हो सकती है जिसके कारण से उनके सर में दर्द होता है, या माता जी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पावर के साथ सांस ले रही है, ये भी एक संभावना बनी रहती है। जैसे मान लीजिए, ये देखो मैंने क्या किया, पूरी मसल्स को सिकोड़ लिया, और कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं पार्कों में। स्वाभाविक है, सिर में दर्द हो जाएगा, स्वाभाविक है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट ना हो तो एक अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में 1-2-4 क्लासेस उनको दिलवा दीजिए, ताकि उनको कंफर्म ये पता चल जाए कि उनको प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं, ये मैं जान करके, देख करके ही स्पष्ट कर पाऊंगा कि उनको ऐसा क्यों होता है। लेकिन कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं, इस प्रकार से भी अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable time and knowledge that you have shared with us. Now I invite Ms. Deepika for her मैं सबसे presentation पहले on एक बार आप सभी लोगों का, मैडम तानिया गुप्ता जी, प्रिंसिपल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्रतिभा गर्ग जी, प्रोफेसर रेड्डी सर, और आप सभी जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है,
प्रिंसिपल मैम के साथ जो कंधे से कंधा लगा के जुड़े हुए हैं, और अध्यात्म योग संस्थान के महासचिव अनिल बाल्यान जी का, और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एकाग्रचित्त होकर मेरी बात को सुना। धन्यवाद। Now I invite Ms. Deepika for her presentation. Over to you, Deepika. Am I audible? Shivangini, am I audible? Yes, yes. Yes, Deepika. Literacy is much more than educational priority. It is the ultimate investment in the future and the first step toward all the new forms of literacy required in the 21st century. We wish to see a century where every child is able to read, to use his skill to gain autonomy. Said by Irena Bokava, UNESCO Director General. A very good evening to all the honorable guests and participants for the session. Today, I'm Deepika, NSS volunteer and student teacher of Army Institute of Education, Greater Noida. Wish you all a happy International Literacy Day. Firstly, I want to differentiate between literacy and illiteracy. In layman terms, we can define literacy as the ability to read and write, and illiteracy as disability to read and write. But when we talk about the modern context, we define literacy as the ability to use numbers, language, images, computer in order to communicate, understand, solve mathematical problems, and use the dominant system of a culture. Now, when we talk about history of this day, it is on 26th October 1966 at 14th session of UNESCO Journal Conference. 8th September was declared as International Literacy Day, and it was firstly celebrated in 1967. Since then, this day is celebrated to remind public about the importance of literacy as a matter of dignity and human rights, and to advance the literacy agenda towards a more literate and sustainable society. Now, I want to talk about the definition of literacy by UNESCO. Beyond its current concept as a set of reading and writing skills, literacy is now understood as a means of identification, understanding, interpretation, creation, and communication in an increasing digital text-mediated, information-rich, and fast-changing world. This is the best definition given by UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Also, there are some alarming facts about literacy in current scenario, that 773 million adults and young people lacks basic literacy skill, and it's a huge number. 670 million children and adolescents are not achieving minimum proficiency level in reading and mathematics. Even during the initial phase of this pandemic, schools were closed and disrupted the education of 62.3% of the world student population of 1.09 billion. It's a huge number. Adult literacy and education were absent in initial education response plan. Therefore, many youth and adults with no or low literacy skills have had limited access to life-saving information. Now we can have a look on Indian state of literacy according to Sensex 2011. It indicates that there has been a rise in literacy from 64.83% to 74.04% in 2011, but I still feel it's on the lower side. On one more fact, I want to share that
according to the report of National Statistical Office Survey, NSO, the India's literacy rate of 2020 stands at 77%, in which Kerala is at top with 96.2%, and Andhra Pradesh is at bottom with 66.4% only. On the other hand, when we see the rural literacy rate is 73.5% and 87.7% in urban areas of country. This indicates that we are growing, we are moving toward literacy, but still the goal is far and we have to collectively work for it. Like UNESCO this year have a special theme of International Literacy Day 2020. Now the theme of the International Literacy Day 2020 is literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond, with a focus on the role of educators and changing pedagogy. And the main objective of this year's celebration are to enhance understanding about impact of COVID-19 crisis on teaching and learning of youth and adult literacy and educators, and so that we can reflect on reimagine teaching approaches in the time of this pandemic. Also, to increase awareness of the need to reinforce support for educators. We cannot move away from educators, or we have to support the educator for growth of them, for promoting the youth and adult literacy toward achievement of Sustainable Development Goal 4 in its totality. Also, to generate and share new knowledge related to educators, including that pertaining both to their profile, pre and in-service teacher training, and also to the pedagogy and teaching methodology. Also, UNESCO come up with some strategies for youth and adult literacy 2020 to 2025, and these are as follows. Developing national literacy policy and strategies. Second, addressing the learning needs of the disadvantaged groups, particularly women and girls. Leveraging digital technology to expand access and improving learning outcomes. Monitoring program and accessing literacy skills and program. Now, the main issue that we need to address, that UNESCO is trying to address, is that in the recent COVID-19 crisis has been a stark reminder of the existing gap between the policy disclosure and reality. The gap that already existed in the pre-COVID-19 era and is negatively affecting the learning of youth and adults who have no or low literacy skills and therefore tend to face multiple disadvantages. Even during COVID-19, many countries, adult literacy programs were absent in the initial education response plan. So the majority of the adult literacy programs that did exist are suspended, with just a few courses continuing virtually through TV or radio or in open air spaces. Now I want to throw some light on the relevance of this International Literacy Day. This day will provide an opportunity to reflect on and discuss how innovative and effective pedagogy and teaching methodology can be used in youth and adult literacy program to face the pandemic and beyond it. The day will also give an opportunity to analyze the goal of educators as well as elective policies, systems, governance, and measures that can support educators and learning. Also, UNESCO this time is initiating a virtual conference for a collective global discussion to reimagine the learning, to reimagine the teaching and learning of youth and adult in the post-COVID-19 era toward achievement of Sustainable Development Goal 4. Now, I want you to see a small video from UNESCO. Imagine not being able to read during a pandemic and miss out on life-saving information. Today, this is the case for at least 773 million adults and young people around the world who lack basic literacy skills. Globally, the COVID-19 pandemic has disrupted education, affecting 91% of students
763 million teachers. While efforts have been made to continue education through distance learning, youth and adult literacy programs have mostly been suspended. This is a stark reminder of the fragile state of literacy learning. This needs to change. To leverage the transformative power of literacy, we need to prioritize quality teaching and learning. We need to invest in educators so they can adapt teaching to various conditions. We need to build robust learning systems so that literacy programs throughout life are resilient. Together, we can use the time of crisis to reimagine literacy teaching and learning. On International Literacy Day, let's step up the collective effort and commit to making literacy teaching and learning a priority so that no one is left behind. Yeah, rightly Imagine said, what- no one is left behind. Literacy is at the heart of the basic education for all and essential for eradicating poverty, reducing child mortality, curbing population growth, achieving gender equality, and ensuring sustainable development, peace, and democracy. At last, I want to say that literacy is a bridge from misery to hope, and a single thread of hope is still a very powerful thing. Thank you. Thank you, Deepika, for this wonderful presentation. It is not joy that makes us grateful, it is gratitude that makes us joyful. So I now invite Dr. Saloni Goel, faculty member NSS Cell, to propose her vote of thanks. Over to you, ma'am. Ma'am, please unmute yourself. Saloni ma'am, you are not audible. Please unmute yourself. Good evening. Am I audible? Am I audible? Yes, yes, ma'am. Good evening to one and all present here. I, Dr. Saloni Goel, faculty member, NSS Cell, Army Institute of Education, take this opportunity to express my gratitude to all the esteemed guests and honorable participants who have been associated not only for today, but for the last 10 days. मैं आज के सत्र के संसाधन व्यक्ति योग आचार्य श्री रमेश कुमार जी का अभिनंदन व शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज हमें प्राणायाम के द्वारा श्वास और विचारों को कैसे साधा जा सकता है, इस तकनीक से अवगत कराया। डॉक्टर रमेश कुमार कार्यशाला की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह आपने हमारे साथ योग, अनेक आसन, इन सभी का अभ्यास और विचारों पर कैसे संयम बनाया जाए, बेहद आसान व रोचक तरीके से हम सबको समझाए। I am sure we all will benefit from yoga, and we must make it a habit that these basic breathing exercises are a part of our daily routine. Over the last 10 sessions that have been organized, different disciplines of yoga have been covered. Every yoga acharya who deliberated and did yoga asanas has only added to our education. Maneh prasah manopayo योग इत्य विधीयते, जिसका हिंदी में अनुवाद है मन के प्रशमन के उपाय को ही योग कहा जाता है, and in English it means the recourse to pacify the mind
is called yoga. So I heartfelt thank you to Dr. Ramesh Kumar ji. I also extend a warm thank you to Dr. B.V. Ravana Reddy, Program Coordinator, NSS Cell, GGS IPU, who, with his vision and guidance, has propelled us to ensure that every session was well conducted and it added to both our physical and mental fitness. I also appreciate and applaud Deepika's efforts for spreading awareness on National Literacy Day. Indeed, presentations like these, which have been spread over the last 10 days, have only added volume to our prevailing knowledge. I would like to take this opportunity to thank our principal, Dr. Tanya Gupta, who was steadfast in helping us in every possible way. She was always there to help us overcome every glitch. Heartfelt gratitude to Ms. Pratibha Garg, Program Officer, NSSL, Army Institute of Education, and her entire team, who has worked relentlessly for making this workshop see the light of the day. I thank each one of you. Tomorrow is the culmination of 10 days online National Yoga Workshop, My Life, My Yoga, with a panel discussion and a valedictory session. I would request all the participants who have been there since 30th of August to be there for tomorrow's session also. I now request all the participants to please kindly take leave from the meeting. Thank you. Jai Hind.